टू अदर्स, क्योंकि ये केवल बोलने के केवल एक तरीका है। माया दीजिए जैसे भक्ति योगेन मनसी सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रय। माया इज वेरी फार फ्रॉम कृष्ण, बिकॉज जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण एज लाइक वेरी डिलाइटफुल and are light, and our Maya is darkness. So where is the Krishna? Maya is so saying Vilajya Manaya. Vilajya, then Maya is very ascend and she is very far from Krishna. In this verse, Bhakti Yogana Manasi Samhika Pranite Amale Apasat Purusham Mayancha Tadapasam Tad Apasram. Sanskrit word Tadapasam means Maya is little far from Krishna, and she is very shy because she is thinking, oh, these jivas are very near and dearest of Krishna, but I am giving punishment to them. Maya is there. Then we are going to example. There are many, because all Chit Tattva, you cannot give the one example can understand these things. Because we are in material world, all our activities actual and contaminated Maya Triguna. Jiva Goswami Pad explained, even you attend in the Bhavadasha, what you speak, that is not the perfect. Because when you are in this material world, you speaking this thing and compare those transcendental things, not possible. But anyhow to understand. So given example, how Maya is there staying with Krishna, then given Jatha Urnabhav. Jatha Urnabhav means as like what is called Makra. Makra means Makarsa. Spider. Spider makes the webs. Makre ke jal. But when they are weaving the spider, then sometimes he falling down and with his the saliva also coming down, and again with the saliva taking with and going in this way with his own saliva. This is some miracle. With his own saliva, he also shelter and going to up. And understand that look like this. If you split, and that going to down. This is very simple. And with your split, you cannot go to the up. Can the spider look this way and with his own saliva. And so taking and going up everything. So this example has been Jatha Urnabhav. In the same way, Maya is doing this way. Maya is also because Sakti, Saktiman or Avruddha. They are not different between Sakti and Saktiman. Maya also Sakti. Yes. And for this regard, Maya also look like this. For this regard, this example has given. Though all example is not perfect, but something angsik. Partly we are giving the example you may understand. Manaji, Krishna said, Aham Sarvasya Prabhavu. So he is also the original of this demoniac world. When Krishna said Aham Sarvasya Prabhavu, means he is also the origin of all this matter world and now so demoniac and that is his potency. His potency. Sakti. His Sakti, without his Sakti can't do anything also. But why Krishna Bhagavad Gita also saying, and I'm Bhaktamay Prahlad. Osuramay this, even also saying this way. So why he is doing this? This is his Leela. If you not Leela, sometimes it's so terrible what we see. we don't tolerate, no? You will not tolerate, but this is Krishna Leela is going on. This is nothing from Krishna. We are singing, oh, this is very terrible, this is very untolerable. Slaughtering of the cows and this and that. This is Maya is doing this way. This ought to do.
But in transcendental world, there is not the slaughterhouse, not the slaughtering anything. And there is the neat and clean in everything. Well, why he did not make everything the spiritual world? Why he had to make this horrible place? This is the Leela. Otherwise, you will not happy. Eh? अरे महाराज जी दंडवत 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 जय हो. Krishna performs this Leela. Without his Leela can't do anything. और फौजी Krishna Leela this way. If Krishna would not this Leela, we would not come here and we are not happy. Not happy who? Who does not want to listen Krishna Katha? Tell to me first. Nibrita tarasai upagiyamanat bhavu sada stotra mano viramat kauttama sloka gunanubadat pumana virajit vina pasugnat. Who does not want to listen Krishna Katha? Butcher. Yes. We are not butcher, so so listen Krishna. But my question is, if like everyone coming from Krishna, so why they become butchers? Why Butchers they need cannot- also. If you not butcher, so you will not happy. If you not suffering, literally suffering also. This is called one kind of what is called Mercy. mercy. No, this is also bhog. Two kinds of bhog. Tageno bhogam और क्या बोले भोगेनो भोगम. त्याग के द्वारा भोग होता है और भोग के द्वारा भोग होता है. दिस इज द फिलोसफी ऑल्सो. वैराग्य मीन्स इज ऑल्सो दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ ऑल्सो भोग. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस वे. You understand? There is Vairagya means is detached. Okay, so now coming to Srimati Radhika. Just coming in the Krishna Lila, Yes. Srimati Radhika. Srimati Radhika, she is saying, Lalita Devi, she is giving the instruction to Srimati Radhika. Hey Radhe, why are you suffering? This cause of you also make the friendship with Krishna. So you have to give up the friendship with Krishna. There is a Vairagya. Yes. Understand these things. So what will do? So okay, you should forget to Krishna. You have to become as like Brahmavadi. Aham Brahmasmi. Nothing else. Then the Brahma, effulgence. Just you also, and Lalita Devi is giving this types of instruction to Srimati Radhika. So how to meditate and or the impartially अद्वैतवादी कैसे मेडिटेट करते हैं और ललिता देवी सिखा रही है. ललिता देवी से इज गिविंग दिस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हाउ टू मेडिटेट एंड दिस थिंग अद्वैत एंड जीरो. वी हैव कमिंग फ्रॉम जीरो एंड एंटरिंग जीरो. वी कमिंग फ्रॉम इफल्जन एंड एंटरिंग इफल्जन. देन okay, so Lalita Devi is giving this types of instruction to Srimati Radhika. And how to do this way, close your eyes and do this way. And the breathing prashay, the thing, and will do. And Lalita, after a few minutes, Srimati Radhika go, whatever I am doing, then I am looking everywhere in Krishna. Because Srimati Radhika, Krishnamayi, Krishna Radha, antare bhagire. Jaha jaha netra pade, taha Krishna spure. So it is impossible for me to meditate and what is called Brahma. So these are. So these are the things. Without suffering, and you will not happy also. You want or not? This is one kind of happiness also there. Vairagya, tag, vairagya also one kind of happiness. We are saying this word. This is the using these words also. Yeah, how these words? When you go then understand. Yeah, when someone has suffered so much and then finally gets something extraordinary, then the happiness is more. That is called Sanjog and Viyog, meeting and separation. Separation and meeting. Without separation, meeting will not increase. No bina vipralambhe no sambhoga pushti masunate. So
So Jogmaya arrange these things. What is Vairagya? Or what is the Bhog? Enjoying these things. In our material world, Jagat, we are using this word Vairagya or Bhog, this word. In transcendental world, this is another way. And the Leela also going this way. So much happiness is going on there. In Krishna. Boma Lila, is Krishna more happy in Boma Lila or in Golok Vrindavan? Is Krishna. Krishna more happy when he's in Boma Lila, like he has Mother Yashoda is a baby, and because there is Kishore, he has no baby for. Or Hare Baba, try to understand. There are two kinds of Leela. One is called, what is called? Prakrita and Aprakrita. Nitya Leela and Namitya Leela. Nitya Leela and Namitya Leela. Nitya Leela is always going on this way. Namitya Leela, that is called the Sam, this is no form, but Bhava Matra is there. Such as given example, Krishna Janma Leela is not in there. No. But Krishna is taking birth from the womb of Mother Jashoda. Otherwise, how possible this Leela is going on this way? In our word, we can explain this way. Jiva Goswami Pad explain this way. There is no Janma Leela. This Janma Leela also included in Boma Lila. Naimittik Leela. Two kinds of Leela. One is called Naimittik Leela and another is called Nitya Leela. Nitya Lila is in Golok. Are Golok Vrindavan there also. No, but when he's coming on Boma Lila, what that is is it then? even in Golok Vrindavan. Ashtakalin Leela in there also there. Because all this Leela also क्या बोले उसको ये कराते हैं Come together. जितने भी लीलाएं जो है माधुर्य जल के स्फीत कराते हैं all kinds of Everything is leelas included. dasya sakha vatsalya madhurya dasya sakha vatsalya all leelas increasing how to madhurya and if Krishna will not take birth in there, so how to madhurya in going in there with this? Mother Jashoda, she is there. Yes. As is, when Krishna lets Jogmaya see and these types of mood is coming, Mother Jashoda is thinking, today I gave birth my baby Krishna. Jogmaya is arranging this leela. Some figure is not in there. Actually, Jotila Kutila. They are not there. There is no figure of Jotila Kutila. Kintu the Bhav Matra is there. Otherwise, Leela will be not in Krishna, Leela will not there. And if the Jotila Kutila, the house Krishna, Srimati Radhika, she will go Nandagaon. And if Jotila Kutila stop to her, this Leela will be not realizable. आज में रसमाधुर्य के आस्वादन करने के लिए जोग मैंने जटिला कुटिला को एक भाव प्रकट करा देते हैं, किंतु के फिगर नहीं है, किंतु फिगर है कि नहीं है ये तो जिब्ब से फेर करें। ये मैं जो कुछ को बोल रहा हूँ, इवन साधक इन काम इन द स्टेज ऑफ भाव दशा, ऑल हिज कथा इज दैट इज सम मिक्स्ड विथ माइंड, दैट इज कॉल्ड क्या बोले मॉल शब्द यूज किया गया, भाषा की वो शब्द होता है कि इस जगत में हम जो भाषा बोलते हैं ये प्राकृतिक भाषा ही है। आपके साथ जो मैं भाषा जो बोल रहा है ये भाषा क्या है? प्राकृतिक भाषा है। उस जगत की जो भाषा उसके ट्रांसेंडेंटल लैंग्वेज कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। ये संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा को हिंदी कहो, इंग्लिश कहो, ये जो शब्द जी कहते हैं, अरे बाबा वही तो बोल रहा हूँ, देवनागरी संस्कृत भाषा का देव भाषा कहते हैं, किंतु ये सब प्राकृत हो जाता है सब, किंतु कहते हैं श्रीमद् भागवत में के दैट इज कॉल्ड समाधि भाषा है। वो समाधि भाषा क्या है उसके लिए समझना पड़ता है। गुरुदेव ये शब्द कहते थे, वो होता है समाधि भाषा। वो शब्द है टेंशन, क्यों इस जगत में हम जो कुछ भी कहते हैं अपने के समझने के लिए हम जिस भाषा हम जानते हैं उस भाषा में समझना पाता हूँ। कोई बंगला में कहे हमारे अच्छी तरह समझ में आता है, जो इंग्लिश होता है इंग्लिश में बोले उसके से होता है, जो संस्कृत जाने वाले संस्कृत भाषा अच्छा होता है। ये समझते, ये जिस जगत में जितने भी भाषा जो कहा जाता है ये सब क्या प्राकृतिक कहा जाता है, और उस जगत में जितने भी भाषा जो है वो ट्रांसजेंडर और प्राकृतिक भाषा का। हाँ समझिए।
Yes. तो इस जगत इसलिए कहा जाता है इस जगत में केवल आंशिक रूप में हम उसको केवल अनुमान कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं आंशिक, पार्टली। वो जो इसलिए कहते रहते हैं नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुति न जमे विषय वृणते तेन लभ तस्य आत्मा विवृणते तनुसार। वहाँ पर जो कथाजी व्यवहार जो हो रहा है वो एक अपराकृत अलौकिक दिव्य भाषा कहा जाता है, उसी की कहा जाता है अपराकृत भाषा कहा जाता है। आज उसी की कहा जाता है समाधि भाषा। हम जो कह रहे हैं वे भी हम तो शब्द कहते हैं ना, उसी भाषा होता है उन पर। क्यों हम इस शरीर में आए, इस जगत में जो हम जो रह रहे हैं उसी के शब्द हम व्यवहार करते हैं, समझाने के लिए, समझने के लिए हम कह रहे हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु के हम कंपेयर कर रहे हैं। कृष्ण के आँख कैसे है? कमल नहीं, और कमल नोचर कमल कहने से देखो इस शब्द में जो कहते हैं हम कमल कहने से एक प्रस्फुटित कमल के हम चिंतन करते हैं, किंतु वो कमल जो कह रहे हैं वो कमल नहीं है। किंतु इस जगत में जो कमल कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, मुरझा जाता है। किंतु उस जगत में यदि तक क्या कृष्ण के आँख क्या मुरझा जाता है? तो फिर कमल की क्यों तुलना दे रहे हैं? इस तो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में अंतिम में जाकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यही बता रहे हैं, साधक जब भाव दशा में पहुंच जाते हैं, अब कृष्ण के दर्शन हो जाता है, दर्शन करके वो अपने को श्लाघा करते हैं ना, क्या बोलते हैं ना श्लाघा नहीं, क्या धिक्कार देते हैं, धिकता मैं साधु समाज के कलंकित कर दिया। क्यों? कहाँ कृष्ण के दिव्य मूर्ति, विशाल एक पहाड़ जैसे हिमालय, और उनके साथ मैं तुलना दिखे चाना के साथ तुलना, चाना समझते हो? चिकपीस, हाँ, उसके साथ तुलना दी है। ये होता है कभी? क्यों? तथापि इस जगत में हम जो बैठे हुए हैं, इस जगत के आपके समझाने के लिए, हम समझने के लिए ये उदाहरण दिया जाता है। आज जो कमल देखा ही नहीं है कभी, उसके कमल के बारे में कहे उसका क्या होगा? इसलिए तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद वो हाथी के उदाहरण दे रहे हैं। जब 5 प्रकार के व्यक्ति बोले हाथी, 5 अंधे के बोले हाथी देख कर क्या हो है, 5 ने साधना के हैं। तो जो जिसके हाथी के जिस अंग के स्पर्श किया वो हाथी के उसी के वर्णन कर दिया है। बोले हाथी के पैर कैसे हैं? खंबा के भांति है। अच्छा, वो खंबा को देखा ही नहीं, वो खंबा कैसे कर रहे हैं? जो जिसी प्रकार होता है उसी प्रकार कहते हैं। जो सूर्य कहते हैं वो सांप के भांति कर रहे हैं, जो जिसी प्रकार ही है। कि उसी प्रकार भगवान के स्वरूप माधुर्य की जो वर्णन जो हो रहा है इस जगत में, हम जो कुछ भी बोलते हैं वो शब्द की मल मात्र है। ये हमारे जीव गोस्वामी पाद ये उदाहरण देते हैं, सारी हमारे मल मात्र है, और केवल हम लोग समझने के लिए, समझने के लिए कार्य है। प्रेम की वस्तु क्या है? जैसे मैंने उदाहरण दो, प्रेम वस्तु है कि हम तो उदाहरण दे दें। देखो इसको मैं उस दिन प्रवचन में कहा रहा था, देखो रूप गोस्वामी, वही रूप गोस्वामी पाद प्रेम के अनेकों परिभाषा देती जा रहे हैं। ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर जो ध्वंसीभूत नहीं होकर उत्तरोत्तर संवर्धित होता है उसके प्रेम कहा जाता है। प्रेम की अनेकों परिभाषा दिया गया है, किंतु अंतिम परिभाषा जो है रूप गोस्वामी पाद का कहते हैं, कहते एक बूंद जो आंखों के आंसू ही प्रेम की परिभाषा है। तो ये कैसे शब्द है? ये है वो क्या कौन समझते हैं? वो है क्या? प्रिय प्रियतम समझते हैं, प्रेमिक प्रेमिका समझते हैं, जिसके साथ संबंध है। बच्चे की आंखों से आंसू देख करके माँ के हृदय में आ जाता है, वो समझ जाती है। जो माँ जो है अपने पुत्र स्नेह जो वात्सल्य भाव के नाते वो समझ जाते हैं। प्रिय प्रियतम के जो है उनके की आंखों की घुरनी चावनी जो कुछ भी है वो प्रिय प्रियतम के जो होता है। सब लोग बैठे रहते हैं, गोपियाँ भी बैठी है, सखाओं बैठी है, सब एकत्र में बैठे हुए हैं। कृष्ण एक है, किंतु अनंत जो भक्त होते हैं, अनंत भक्त के अनंत जो भाव माधुर्य रहता है। कोई शांत हो, दास हो, सख हो, वात्सल्य, जो जैसे भक्त होते हैं वो उसी भक्त की प्रेम माधुर्य की वो समझ जाते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं। आज समझिए नहीं, माधुर्य रस की उसी प्रकार ही है। आंखों की क्या बोले इंगित, आंखों की क्या बोले माने घुमाने से जो है वो अपने आप समझ जाते हैं सब। ये समझ तो जो है सांकेतिक शब्द होता है वो,
ऐसा संकेतिक। प्रेम की इसलिए करे, प्रेम ऐसे एक वस्तु है कोई शब्दों के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते, तथापि बोलने के कहते हैं ये है वो है, ये प्रेम है, ऐसी बात है। क्योंकि इस जगत में प्रेम है ही नहीं, सीधी बात है। जेनो जामू नद हेम नीलोके ना हो, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जेनो जामू नद है, हिमालय के उदाहरण दे रहे हैं। हिमालय के सुच्च पर्वत पर एक नदी है, उस नदी के क्या बोले तट पर एक जामुन वृक्ष है। उस जामुन जब पक जाता है, वो फल जो नदी के तट पर जब प्रसव होता है, उससे एक प्रकार से स्वर्ण प्रकट होता है। वो इस जगत में नहीं आता है, और साथ ही साथ देवता उसको लेकर ही चले जाते हैं। है ठीक उसी प्रकार प्रेम ऐसे एक दिव्य अलौकिक वस्तु जो है इस जगत में है ही नहीं, क्योंकि तथापि हम प्रेम समझाने के लिए ये सब कहते हैं। जितने भी हम कहते जा रहे हैं प्रेम के बारे में कहते जा रहे हैं, प्रेम ये है वो है, ये ऐसे 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 है, किंतु इस जगत में कैसे समझाए? एक चक्षुष्मान व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कैसे समझाएंगे आप बताइए? हैं वो उसके उसी प्रकार अनेक उदाहरण देकर समझा रहे हैं, किंतु जब तक उस व्यक्ति की आंख नहीं खुल जाए तब हजारों बोले वो कुछ सूर्य कैसे है। जो जन्मांध है उसके निकट यदि बोले सूर्य प्रकाशमान है, ये है वो है, सूर्य के घोड़े है, रथ है, ये है, आप बताओ है। हम जो सूर्य देख रहे हैं, हम वास्तव में हम सूर्य नहीं देख रहे हैं, ये तो सूर्य बहुत दूर है। शास्त्र में कहा जाता है सूर्य बहुत दूर है। उसके सूर्य के रथ है, उसके घड़ा भी है, उसके केवल जो है एक दीप्ति जो छटाई हम हमारे पास है, वो भी हम देखने, वो इतना तेजमान है हम सूर्य के कहाँ देख पाते हैं? आप बताओ। जब हम इस जगत में होकर के वही भी सूर्य तो भी तो जड़ जगत की है, एक सूर्य के हम देख नहीं पाते हैं, और भगवान को हम कहाँ करें? इसलिए कहते हैं आत्मा की स्वरूपगत वृत्ति जब प्रकाश हो जाता है, भगवान स्वयं कृपा करके जब अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं तब देखते हैं। इसलिए तो वही श्लोक, एक ही श्लोक के हमें बार बार हम कर रहे हैं। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन जमे बनी से वृणुते तेन तब तसे सब विवृणुते तनुषा तसे विवृणुते तनुषा, स्वयं अपने स्वरूप के जब प्रकाश कर दे और स्वयं हमें दर्शन की शक्ति, हम भगवान के दर्शन कर नहीं पाएंगे। ध्रुव सोच रहे हैं मैं भगवान को दर्शन किया, क्या ध्रुव अपने जड़ आंखों से दर्शन किया? वेद भागवत में बोल रहे हैं ध्रुव सोच रहे हैं मैं उसी आंखों देख रहा हूँ जिस आंखों के द्वारा यही आंखों के द्वारा, वास्तव नहीं हुआ है। भगवान कृपा करके एक अलौकिक जो है वो दिव्य आत्मा के स्वरूप की अनुभूति करके उसके दर्शन देते। इसलिए हम शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत है प्रभु, जागू का हृदय मौन सुमंगलाल। भगवान हमें देखे, हम भगवान की क्या देखेंगे? पत्थर बुद्धि होगा, इससे अधिकार क्या हो जाएगा? अथवा पुजारी जैसे सजा ऐसे सजा है। किंतु जो प्रेमिक भक्त है विग्रह देख करके क्या होता है? अहो और उसके दिव्य अलौकिक चिंतन आ जाता है। विग्रह दर्शन भी कई प्रकार होते हैं, एक अंगिक दर्शन होता है और एक अंग दर्शन होता है। हम जो विग्रह दर्शन करते हैं, विग्रह दर्शन के दो प्रकार पद्धति बताए, एक होता है अंग दर्शन, एक अंगिक दर्शन होता है। और ये सब बहुत कुछ विचार है। और एक लीला दर्शन होता है, उसमें है जितने भी अलंकारिक, इसको कहते हैं अलंकारिक दर्शन, लीला दर्शन। जो महाभागवत होते हैं वो विग्रह की देख करके उसे स्फूर्ति हो जाता है। भगवान ये विग्रह से चिन्मय है। हम जड़ होने के नाते, हमारे इंद्रिय आदि जड़ होने के, बुद्धि आदि जड़ होने के, हमें जड़ बुद्धि होता है। आज समझिए। किंतु जब भजन करते करते भगवान की कृपा से, स्वरूप शक्ति की कृपा से, राधा रानी की कृपा से वो दिव्य जब हमारी शक्ति हमारे पास आ जाता है, आत्मा की स्वरूपगत वृत्ति जब प्रकाशित होता है तो वो विग्रह, इसलिए कहते हैं विग्रह नहीं कि तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन, वही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे क्या? विग्रह नहीं कि तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अब साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर है। हम जगन्नाथ देव के क्या दर्शन करते जाते हैं? आँख डायलेटेड आइज है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये हम दर्शन करें, ये हमारी बुद्धि है। किंतु महाप्रभु क्या देगा? विग्रह न कि तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर। महाप्रभु उसको देख करके आनंद में नृत्य करते जा रहे हैं।
जिससे जो रथ यात्रा प्रसंग आ रहे ना है, सही तो प्राणनाथ पाइन जहाँ लगे मदन दहने जुरीगन, स्वरूप दामोदर तान छोड़ दिया और महाप्रभु दिव्य उन्माद होकर नृत्य करे, सही तो प्राणनाथ पाइन। मैंने सुदीर्घ विप्रलंब के बाद जब क्या बोले प्रिय प्रियतम जब मिलित होता है, उनके हृदय में ऐसे एक प्रबल आनंद होता है, जिससे हमारे वो विद्यापति के कीर्तन में ना है, सोई कि कोई वो सखी आनंद और चिरदिन माधव मंदिर मोद है, आचर भरिया यदि मानिक पाई तबु हम प्यारे दूर देश न पटाए। ये सब भाव होते जा रहे हैं। महापुरुष इसी भाव तो उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, हमारी जड़ बुद्धि, आप लोग के नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे जड़ बुद्धि होने के नाम क्या देखा, चलो है। जैसे महापुरुष जैसे कहते हैं नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगद्देहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, प्रणाम मंत्र जो है तो महाप्रभु भी ऐसे भी जगत जीव को शिक्षा दी है। ये जा करके किस प्रकार जगन्नाथ जी की स्तुति आदि करना है, ये जो देखो चैतन्य चरितामृत में 3-4 स्तुति करते जा रहे हैं, किंतु महाप्रभु के भाव धीरे धीरे महाप्रभु के भाव बढ़ते जा रहे हैं। महाप्रभु फिर क्या कर रहे हैं, विग्रह न कि तुम्हें साखा सकता ब्रजनंदन नंदन है। और ब्रजनंदन क्योंकि प्रणाम थोड़ी करता है उस समय, पहले तो महाप्रभु प्रणाम कर लिया जगन्नाथ जी है, किंतु फिर जब महाप्रभु करे विग्रह न कि है, महाप्रभु उनकी कैसे भाव दीदी करे, फिर महाप्रभु के रहा नहीं गए, महाप्रभु भाव में इतने आविष्ट हो गया बस। और वो साहित्य दर्पण के श्लोक महाप्रभु कितने करके भाव में आविष्ट होकर के है नृत्य आदि करने लगे, आंखों से आंसू विगलित होते जा रहे हैं। और स्वरूप दामोदर है आनंद में उत्फुल्लित हो रहा है और एक ही दुहा के बार बार बोलते जा रहे हैं, सही तो प्रणाम हो रहे, सही तो प्रणाम तो पाइनु जहाँ लगी मदने दोहने झुरी गई। यही धुआ गाय गाय स्वरूप दामोदर बार बार इसकी कर रहे हैं। और महाप्रभु दंड होकर नृत्य करें और वो साहित्य दर्पण के वही श्लोक जो है बार बार उसके क्या पहले लाइन क्या नहीं जो साहित्य दर्पण के जो जय कुमार और श्लोक के वर्णन करते जा रहे हैं, महाप्रभु इसको रिसाइटेड करते जा रहे हैं, स्तुति करते जा रहे हैं। अब ये क्यों, स्वरूप दामोदर छोड़ करके बाकी जितने भक्त की सब सिर घूमने लगे है। ये सेक्सुअल कथा कैसी है, सन्यासी जो महाप्रभु स्त्री को मुक्त दर्शन नहीं करते, स्त्री शब्द के किसी के द्वारा ऐसे के शब्द नहीं करते। और ये प्राकृत स्रोत व्यापार और विधो, स्रोत शब्द को होता है स्त्री पुरुषों के जो है काम क्रीड़ा की कथा, जो उसके स्रोत क्रीड़ा कहा जाता है। और महाप्रभु उसके शब्द के बार बार करते जा रहे, एक बार कहा 2 बार किया तो सबकी सीट घूमने लगे। ये क्या बोल रहे महाप्रभु, स्वरूप दामोदर आनंद हो रहे हैं। देखो महाप्रभु यही साहित्य दर्पण के श्लोक जो है बोलते जा रहे हैं, जो कुमार हर इस कथा को बोलते श्लोक बोलते जा रहे हैं और सब स्वरूप दामोदर आनंद है। सही धुआ गाय स्वरूप बार बार एक ही शब्द की कार्य सही तो प्रणाम और महापुरुष आनंद में नृत्य करने लगे और ये श्लोक के बार बार रिपीटेशन करते जा रहे। किसी को समझ में नहीं आ रहे, क्या किसी को समझ में नहीं आ रहे, स्वरूप दामोदर बिना नहीं अन्य जन महाप्रभु की भाव को जो है शब्द। किंतु उस दिन भाग्यक्रम से जो रूप गोस्वामी पाद आ गए थे हैं, और रूप गोस्वामी पाद भी वहीं पर थे। रूप गोस्वामी पाद चुपचाप रहे और रूप गोस्वामी पाद जब क्या बोले रथ यात्रा समाप्त हो गया, सब अपने स्थान पर लौट कर चले गए। और रात में स्वरूप दाम क्या बोले रूप गोस्वामी पाद ने उसी के पैरेलल, उस भावों के पैरेलल ये श्लोक लिख दिया, प्रिय सोहंग सहचरी पुल खेते मिले तब, और लिख करके अब तालपत्ता में लिख करके हरिदास ठाकुर के जो है वो छाबरा में जो है कुटिया के छाबरा जो होता है ऊपर का है, वहीं पर स्नान करने के लिए चले गए। और ठीक उसी समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के क्या बोले मंगल आरती के दर्शन बाद हरिदास ठाकुर के पास आ गए, सिद्ध बकुल में आ गए। और महाप्रभु अकस्मात जो है उसको देखा है। स्वयं सच्चिदानंद गौरी भगवान जानते हैं ये आज मैंने जो काल जो मैं जो श्लोक जो पढ़ा, महाप्रभु जानते हैं सब भक्त के मुंह क्या होते हैं, सिर घूम रहे हैं ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु हैं। यदि महाप्रभु ऐसे नहीं लीला करते लोग समझ नहीं पाते, लोग कहते ये सहजिया ये है, जैसे सहजिया लोग जैसे करते रहते हैं स्त्री के आलिंगन करना स्टूपिड नॉनसेंस आजकल वो भी समझते सकते थे। तो ये महाप्रभु इसी के जो है खंडन करने के लिए महाप्रभु के जानबूझ करके महापुरुष सर्वंतर्यामी भगवान उसी लगे जो है करने के लिए यहाँ पर आ गए। और
रूप गोस्वामी हृदय में प्रेरणा भी दिया। महाप्रभु आगे जाकर के स्वयं भी कहा, ये मैं जब रूप हमारे साथ मिले थे, प्रयाग के जब रूप मिले थे, शक्ति मैं संचारित कर दिया और मेरे सारे हृदय के भाव को उनको दे दिया। इसलिए स्वरूप महाप्रभु के भाव को जान करके ये तो उन्होंने श्लोक को लिखा, प्रिय स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिले तो भावों के कितने मधुर भाव को लिख दिया। और महाप्रभु अगर श्लोक पढ़कर गदगद हो गए और गदगद होकर के बोले, ये श्लोक तुमने लिखा? बोले अत्यंत दीनहीन है, रूप गोस्वामी तो दीन है, केवल सिर को ऐसे हिलाया। हम होते थे हाँ हाँ बोले देखो ना मैं कितने कोई नहीं कर पाया, हमने कहा हाँ मैं करते हैं अहंकार। किंतु देखो रूप गोस्वामी पाद कैसे तिनाद भी सुनी, बोले नहीं कि मैंने लिखा, शुद्ध सिर हिलाया, हाँ जी आपकी कृपा से, वो भी आपकी कृपा से, मैंने लिखा ये भी नहीं बोले, आपकी कृपा से। कितना तिनाद भी सुनी हमारे गोस्वामी वर्ग की, ये भाव माधुर्य कितना है। और रूप गोस्वामी के हैंड राइटिंग कितने सुंदर, जनो मुक्त अर्पात। आह महाप्रभु के गदगद हो गए। महाप्रभु स्वरूप दामोदर के पूछने लगे, सर्वंतर्जामी सचिदानंद गौरहरि, तभी स्वरूप दामोदर के पूछ रहे हैं, पहले काल जो मैंने जो एक साहित्य दर्पण के जब प्राकृतिक नायक नायिका के जो भाव को मैंने ये किया था, देखो रूप यहाँ पर कैसे दिव्य अपराकृत राधा गोविंद की भाव माधुर्य को प्रकाशित करते। प्रियो सो एवं सहचरी कुरुक्षेत्र मिली, तो इसको जो है अलग अलग व्याख्या होता है। यहाँ पर भी जो व्याख्या भी जानते हैं तो ठीक है, सुंदर व्याख्या है। प्रियो सो अयं, यहाँ पर कह रहे हैं जे मैं ही वही राधा हूँ और मेरे प्राणकांत कृष्ण वही है, हम लोग एक ही व्यक्ति, तत्व तो वही है, तत्व तो कृष्ण अलग नहीं है। सिद्धांत तत्व भेद भी तत्व सिद्धांत के कृष्ण वैनंदन कृष्ण और द्वारकाधीश कृष्ण मथुरा कृष्ण कोई अलग अलग कृष्ण नहीं है। तत्व सिद्धांत एक ही कृष्ण है, किंतु रसन उत्कृष्ट रस में अवस्थित, रस माधुर्य में हम उसके जो है वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। तो कहते इसलिए कर प्रियो सो अयं है, हम वही है और वही कृष्ण भी वही है, दोनों मिलित हो रहे हैं, हम दोनों एक साथ मिले। किंतु वृंदावन के मिलन में जो आनंद और कुरुक्षेत्र में मिलन में आनंद में कितना अंतर दिखा रहे हैं। ऐसे महाप्रभु यही तो राधा गोविंद की भाव करें, वही जो प्राकृतिक जो नायक नायिका वो कह रहे हैं, विवाहित अवस्था और अविवाहित अवस्था है, अर्थात स्वकीय और पारक्यत्व की एक वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। जड़ जगत की स्वकीय पारक्यत्व नहीं है, और ये जड़ जगत पारक्यत्व है नहीं, वो तो एक व्यभिचार मात्र है, स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल थिंग्स है। इस जगत में जो पारक्यत्व हम कहते हैं वो पारक्यत्व नहीं है, वो तो स्टूपिड नॉनसेंस, वो पापगामी है। और स्त्रीगामी जो है वो अत्यंत जो है घृण्य है। किंतु अपराकृत जगत में वहीं पर पारक्य है ही नहीं। फिर कहे परमाने श्रेष्ठ किया माने अपना ही जो है तो है, और पर किया जो ठीक है वो विवाहित अभिमान रख रहे हैं, वहीं पर अभिमान प्रधान होता है। तो वहीं पर जो विवाहिता जो है वो क्या कहते हैं, असल कृष्ण वो तो किसके साथ विवाह नहीं है, विवाह कहाँ से हो जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर यह ब्रजेंद्र नंदन बिना नहीं स्पर्श अन्नजन, वहीं पर राधा जी की व गोपियों की विशेष एक विशिष्ट है, ब्रजनंदन छोड़ करके किसी के स्पर्श तक नहीं करते। नारायण भी ऐसा, नारायण को भी स्पर्श नहीं करेंगे, वो स्वयं कृष्ण नारायण के रूप में आकर वो भी दूर से प्रणाम करके चले जाएंगे। है तो कहीं से परपुरुष से स्पर्श हो जाएगा? विवाह के समय हस्तबंधन होता है ना, बिना हस्तबंधन से हस्तबंधन बिना जो है विवाह नहीं होता है। तो हस्तबंधन होते स्पर्श एक हाथ से दूसरे ब्राइड ब्राइड के हस्त होगा तो वहाँ स्पर्श कैसे हो जाएगा? इसलिए परपुरुष है ही नहीं यहाँ पर। इसको तो फिर स्वकीय परकीय विचार करते जीव गोस्वामी पाद एक भी कार्य, किंतु लीला वैशिष्ट के माधुर्य आस्वादन करने के लिए परिक्यत्व की प्राधान्यता दे रहे हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद केचित सच्चा केचित परीक्षा है, दूसरे के मान रखने के लिए मैं परक्यत्व के अनुमोदन कर रहा हूँ, किंतु मेरे जो तत्वगत जो भाव व विचार जो विशेष परक्यत्व ही माधुर्य है। तो यहाँ पर जो नायक नायिका जो बता प्राकृतिक नायक नायिका जो विवाहिता है, अभी सब विवाह किया, विवाह के पहले वो तो बता रहे थे उस समय जो आनंद था, हम लोग जो विवाहित नहीं थे और एक दूसरे के जो हम जो मिलते थे उस समय जो मिलन में जो आनंद उत्कंठा जो रहता था, किंतु विवाह के बाद उत्कंठा नहीं रहता
है। किंतु पर क्योंकि परक्यात्व में जो चार जो अमोघ जो अस्त्र रहता है, डू अंडरस्टैंड? Yes. चार वस्तु क्या है? Madam. है वामता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता और ये है, क्या बोले, ये चार वस्तु रहता है। ये परकीय मत्य रहता है, सक्य मत्य रहते नहीं। सांख्य में वामता कहाँ होता है? दो थप्पड़ मारे तो सब मान गुमान हो जाते हैं, भाग जाता है भाग जाए, हमारे घर से निकाल के कहाँ जाएंगे? हाँ, वो वामता नहीं रहता है वहाँ पर, वामता कर है। सक्यत्व में वास्तव रूप में वामता नहीं होता है, और परकीय में वामता रहता है। क्यों? वो उनके अभिमान रहता है, मैं तुम्हारे विवाहित पत्नी नहीं हूँ, है तुम्हारे दासी नहीं हूँ, है विवाहित होने के मतलब मैं तुम्हारे दासी बन जाता हूँ, तुम जैसे करोगे ऐसे ही चलेगी, है। हम कहते ना, है सुहाग चांद बंदनी नधनी नाचत देखी, जमने नाचे राय, जमने नाचे नगर तेमने नाचे राय, सुहाग चांद बंदनी धनी नाचत देखी। ये विवाह की कीर्तन होता है, बंगाल में कीर्तन होता है। जमन नाचे नागर तेमने नाचे राय, है नागर माने अपने पति, पति तुमको जैसे नाचेगा तुमको नाचते है, इसलिए कहते हैं ना, इसलिए सुहाग चांद बंदनी धनी नाचत देखी। सुहाग चांद बंदनी उस समय कहता है, फिर जाकर सूर्य बंदनी हो जाता है, और फिर क्या बंदनी हो जाता है? जाला बंदनी हो जाता है, ज्वालामुखी हो जाता है। वो विभाग में ये कीर्तन होता है, सुहाग चांद बंदनी धनी नाचत देखी। अरे ये सब सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी हो जाता है। किंतु उस जगत में ऐसी नहीं, परकृत्य एक विशेष वैशिष्ट होता है। तो इसलिए महाप्रभु, एक्चुअल महाप्रभु जो प्राकृत न के जो ये कर रहे थे, उसमें महाप्रभु देखना शौकिया अपेक्षा परक्यात्य भाव माधुर्य, रस माधुर्य इतने उन्नत होता है, वो दिखाना चाहते। और ठीक रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भावों को दिखा रही है पर ये प्रिय स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र में, इसके दूसरी अर्थ कर दीजिए। राधा जी करें मान करके वृंदावन, क्या बोले आप, द्वारका के कुरुक्षेत्र की कथा छोड़ दीजिए, ये एक सेवा कुंज की कथा आ जाएगी यहाँ पर। कहते हैं प्रिय सो अयम, अयम है मैं हूँ, और हमारी वो है, हम दुलोक है। क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। यहाँ पर सेवा कुंज कुरुक्षेत्र, क्षेत्र में स्थान कुरु है। आप आइए यहाँ पर, वृश्चिक आचार्य जी के साथ ऐसे कहा जाता है, प्रिय सो अयम है, हम ही वही है, राधा कृष्ण भी वही है, दोनों हम एक स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? सेवा कुंज में है, किंतु मानवती है श्रीमती राधिका। राधा जी मान कर रही है, जो इससे क्या मान में क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बिछोड़ जाते हैं। आज मान की अनेक परिभाषा है, मान और अनेक प्रकार की भी मान है, उदात्त मान, ललित मान, कई प्रकार की मान की विचार, हेतु मान, अहेतु मान, अनेक प्रकार के मान होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मान ललित मान कहा जाता है। तो ये समस्त मान की कार्य हम लोग एक वही कुरुक्षेत्र क्षेत्र कौन से क्षेत्र? वृंदावन क्षेत्र, सेवा कुंज में। किंतु ये मानव दशमी में ये प्रियो सो अयं, ये तो है ही वो दोनों, किंतु मिलन नहीं हो रहा, मानवती हो रही है। और उस मान को क्या बोलते हैं, मनाने के लिए कृष्ण कितने प्रयास कर रहे हैं, पैया पड़ रहे हैं, स्मरगर लखंडनम मम शिव से मंडनम देही तो पद पल्लव मुदार। इतना सुंदर भाव होती जा रहा। श्लोक एक ही है, किंतु व्याख्याकर्ता और श्रोता वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, भाव माधुर्य आस्वादन होता है। महापुरुष श्लोक बोल रहे किताब, किंतु आस्वादन कौन कर? स्वरूप दामोदर आस्वादन कर रहे हैं। रायर नाटक और स्वरूपेर गान, बिरहेर काले दुहे राखे परान। महाप्रभु जब ऐसे भाव में आविष्ट हो जाते थे, कृष्ण विरह में जब महाप्रभु तड़पते थे, सर्वदम रायरमंद ये सब श्लोक जब बोलते थे, महाप्रभु के आनंद उल्लास होते। ऊपर से महाप्रभु विरह प्रकाश करते थे, किंतु अंतर हृदय में क्या आनंद होता है? प्रेम ऐसे एक वस्तु, चर्ब तप्त इच्छु चर्बन जैसे छाड़ानो न जाए। गन्ना है ना, गन्ना के आग में तपा दिया जाए, उसके अंदर में जो रस बहुत गर्म हो जाता है, और जब चिबाओगे, जब चिव कर गए, वो क्या हो जाता है? अजीब के जलज, किंतु इतने मीठा से इतने स्वाद होता है, उसके छोड़ना मुश्किल हो जाए। इसलिए तो कह रहे
तो प्रेम के माधुर्य उसी प्रकार ही का था। तो ये समझते हो महाप्रभु के भाव माधुर्य जो जैसे भक्त है, रूप गोस्वामी महाप्रभु के भाव लेकर के श्लोक लिख दिया। महाप्रभु से करके कृष्ण प्रश्न कितने प्रसन्न है। और स्वयं महाप्रभु फिर पूछ रहे सर्वधन के रूप मेरा भाव को कैसे जान लिया। तो सर्वदाम प्रभु इथे जानी ये आपकी कृपा हुई, नहीं तो आपकी कृपा उन्हें कौन समझ सकते। मेरे कहने की उसी प्रकार जितने में कहते जा रहे हैं, भजन करते करते नाम भजन करते करते नाम प्रभु की कृपा से ही हम इसको अनुभव कर पाए है। वृंदावन की जो भूमि जो है उसकी एक रजकना धूलिकना को अनुभव तब हो जाएगा जो स्वयं जब वो स्वयं प्रकाश कर दे हैं। गुरुदेव एक बार कह रहे थे तुम कहाँ वास करते हो? वृंदावन में। पेशाब करते हो? कहाँ पेशाब करते हो? वृंदावन की जो वास जो होता है यदि हम विचार करके देखें अपराकृत भावना होता है। वृंदावन ऐसे एक दिव्य भूमि है जो है रसमय माधुर्य भूमि है। रसमय माधुर्य वृंदावन भूमि चिंतामणि जहाँ चिंतामणि प्रकट सदमों से कल्प वृक्ष धूली जो है क्या है ये वृंदावन की एक धूली की प्राप्ति करने के लिए उद्धवादी बड़े बड़े भक्त लोग कितने लोट पड़ता है। जो लक्ष्मी देवी की प्राप्ति नहीं हुई है नायन सिंगु नितांतरते प्रसाद तो सर्जोषित नलगंधा रुचपुतो अन्ना रासोत्सव से भुजदंड गृहित कंठ लब्धासुन जो उद्गाद भज सुंदरी नाम। कितना सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं उद्धव जी श्लोक के जो कहते जा एता परांग तनु भूवि गोपबद्धो गोविंद एवं निखिल आत्मनिर्भर भावा वंचन्ति जब भूयो मुनय वंच किंग ब्रह्म जन्म अनंत कथा रसस्व। उद्धव कार्य गोपियों की सौभाग्य है और उस गोपियों में श्रीमती राधा की जो सौभाग्य है वो क्या वर्णन करें। एता परांग तनुभूतो भूवि गोपबद्धो। इस संसार में शरीर प्राप्ति करना तो दुर्लभ होता है। अनेक आत्माएं अभी तो घूम रहे हैं, कोई शरीर प्राप्ति नहीं हुआ है। महाकाश में अनेकों जो है आत्मा घूम रहे सुख से में घूम रहे हैं और फिर कोई भगवान जो जीव जो है और फिर इस शरीर में आता है। चलो जो शास्त्र में तो वर्णन है सूर्य किरण के द्वारा चंद्र किरण सूर्य किरण आदि के द्वारा फिर भूलोक में जल के द्वारा अनेक प्रोसेस है शरीर धारण करे आत्मा। इस शरीर धारण उसमें अनेकों शरीर है किंतु अनेक शरीर में मनुष्य शरीर और उस मनुष्य शरीर तो प्राप्त किया है किंतु उस मनुष्य शरीर में गोपी देह प्राप्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कहते एता परांग तनुभूतो भूवि गोपबद्धो। जो गोपियों की जो है जो शरीर जो है और ऐसे शरीर अतीव दुर्लभ गोपी शरीर प्राप्ति करना कितने दुर्लभ उद्धव इस श्लोक में दर बता रहे हैं। गोपी शोधी प्राप्ति करना इतने साधारण नहीं है। 10,000 साल तक कितने वो दंड करने ऋषि लोग गोपाल मंत्र जप करके वो अपने थोड़ा स्वरूप की उपलब्धि किया फिर रामचंद्र की कृपा से फिर ब्रज में ब्रज गोपी के गर्भ में जन्म लिया। ब्रज गोपी सब वो भी फिर नित्य सिद्धा की संग आदि के द्वारा फिर आगे जाकर के कृष्ण के साथ मिलन रास में जाने के लिए कर लक्ष्मी के संभव नहीं हो। लक्ष्मी ने इतना ही कह दिया तो गोपी का अनुगत्य कर। वो एक तो अनुगत्य करना नहीं चाहते और लक्ष्मी शरीर में कृष्ण के द्वारा मिलना चाहते हैं। ये संभव है कोई? गोपी बिना कृष्ण गोप जाति गोपी बिना ना ही स्पर्श अन्न जन। कृष्ण कहे आमी गोप जाति कृष्ण कह रहे हैं आम गोप जाति है। गोपी बिना अन्य ना करी अन्न गोपी छाड़ करके अन्न के शिकार नहीं करे। ब्राह्मणी के छल बल से उनके लौटा दिया है। आज समझ में नहीं। वही श्लोक एक ही श्लोक कृष्ण कहते हैं भाग स्वागतम भो महाभागा किम करवामी। आप लोग सौभाग्यवान है आपको मैं क्या सेवा करूँ है। कृष्ण देखो फिर वो ब्राह्मणी को जागी पत्नी को समझा बुझा करके भेज दिया किंतु गोपियों के भेज नहीं पाया। वही एक ही शब्द क्या है। कृष्ण अनेक प्रकार हास परिहास किया किंतु कि कारण क्या है ना कृष्ण गोप जाति और गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। इसलिए गोपी देह की प्राप्ति एक अतीव जो है दुर्लभ। इसलिए एता परांग तनुभूतो भूवि गोपबद्धो गोविंद एवं निखिल आत्मनि रूढ़ भावा।
और दो गोपियाँ कैसे यहाँ पर रूढ़ करके अधिरूढ़ महाभाव की जो सर्वोत्तम सीमा तक गोपियाँ पहुँच चुकी है। यद्यपि शब्द में कह रहे हैं रूढ़ भावा, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, रूढ़ अधिरूढ़, अधिरूढ़ की जो है जो मोहन आदि भाव है, ये समस्त गोपियों जो है उस भाव को प्राप्त किया। उद्धव करें ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। अरे हमारे लिए संभव है, महिषी ओपी सुदुर्लभम नित्य संजोगा, जो महिषी हैं द्वारका महिषी के लिए संभव नहीं। जो यही समस्त राधा आदि गोपियों की जो क्या बोलते हैं प्रकाश मूर्ति कहा जाता है, एक्सपेंशन जहाँ पर है, उन लोग भी संभव नहीं है। लक्ष्मी की छोड़ दिए तो कहाँ पहुँच पाए हैं। और ये सब महिषी के रुक्मिणी सत्वों की संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं हमें कहाँ प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए कहते एता परांग तनुभुवो भुवि गोपबद्धो गोविंद एवं निखिलात्मनि रूढ़ भावा। निखिल आत्मनि कृष्ण की, कृष्ण समस्त जीवों की जो आत्मनि स्वरूप है, आत्मस्वरूप ही है। वही जो है सब जीव के हृदय में तो परमात्मा रूप भी है, अथवा आत्मनि अपने प्रियतम रूप में। कृष्ण सबके प्रिय है। समस्त रसों की प्रिय कौन है? कृष्ण ही है। निखिल आत्मनि रूढ़ भावा वंचन जो ने बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि ऐसे बड़े बड़े भक्त लोग भी वो आकांक्षा करते हैं, प्राप्ति करते हैं। ब्रज की जो है प्रेम महिमा को प्राप्ति कर, प्रेम महिमा को सुन करके वो आकांक्षा करते हैं, लालायित होते हैं। क्योंकि ब्रज की कथा सुन करके कौन नहीं लालायित होता है? इसलिए कह रहे हैं एतांग परांग तनुभो भुवि गोपबद्धो गोविंद एवं निखिल आत्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति जदभो भुवयो मुनय वंच है। किंग ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रस, जिनके ऐसे अनंत कथा में रस नहीं है तो बेकार है। उद्धव कहते हैं देखो हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए तो फिर आगे की श्लोक कहा दिया ना, वो क्या बोले ये के मां स्त्रियो वनचारी व्यभिचार दुष्टा है। तो उद्धव कह रहे हैं गोपियाँ व्यभिचारी दुष्टा नहीं है, वंश तो व्यभिचारो दुष्टा है। जो ऐसे भाव को जो प्राप्ति नहीं करते वो दुष्टा है। परमपति भगवान की ऐसी माधुर्य रस की प्राप्ति नहीं करने से क्या होता है? वो दुष्टा हो जाता है। तो इसलिए इसको सुंदर सुंदर जो जीते भाव व्यक्त होते जा रहे। उद्धव तो हैरान हो गया है, अंत में देखा तो हमारे द्वारा संभव नहीं है। इसलिए उद्धव क्या कि ब्रज में रह ही नहीं है। शास्त्र पृथ्वी शास्त्र में 10 मास ब्रज में रहे, कोई कहते 3 मास त्रिमांस 3 महीने रहे, कोई शास्त्रकार का 10 महीने तक रहे, जैसे भी हो। इसके उद्धव क्या करें अधुना मथुरा कृष्ण पालिता, अभी जो है मथुरा जो कृष्ण की तरह पालित हो रहा है। इसलिए हम कम से कम तक साक्षात दर्शन हो जाए है, फिर विचार करेंगे कृष्ण जब अंतर्ध्यान करेंगे तो फिर ब्रज में आ जाएंगे, कुछ नहीं कुछ दिखेंगे, आगे विचार करेंगे। किंतु अभी जो हमारे साक्षात गोविंद के साथ मिले, इधर तो गोपियों की धूलि करना प्रार्थना किया, किंतु उन्हें निराश हो गया है, उसलिए लौट करके गए कि नहीं। फिर इसके बाद जो है कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद फिर उद्धव ब्रज में आए, तो भी ये तपसा आदि जो आपकी घास आदि जो है उसको जो आप कह रहे हैं तब भी आपकी प्राप्ति नहीं हुआ। ये ब्रज की धूल की महिमा कौन वर्णन कर सकते हैं? उस दिन मैं भी कहा था, देखो ब्रज की ऐसे एक महिमा जैसे है वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका नाम कहती सभी आनंद उत्फुल्ल हो जाते, उससे अधिक होता है क्या जहाँ पर है राशेश्वरी श्रीमती राधिका है। वृंदावन के अधिपति कौन है? श्रीमती राधिका। इसलिए जितने भी लता जो है, पक्षिणी जो है स्त्री जाति है, अपने अपने गर्व अनुभव करते हैं। पुरुष के उतना गर्व अनुभव नहीं होता है क्योंकि स्त्री आधिपत्य होने के नाते। हमारे आचार्य पाद टीका में एक श्लोक है, कहते वृंदावन में जितने भी लता है, पक्षिणी है, हिरणी है, स्त्री जाति है, सब स्त्री जाति एक आनंद और गर्व अनुभव करते। क्यों? हमारी वृंदावन के जो राशेश्वरी वृंदावन श्रीमती राधिका है, इसलिए वो गर्व अनुभव करते हैं। आज धन्यवास मो मुड़गते हिरण्य एता जन्म पात्र विषय, हिरणी दौड़ रही है क्योंकि वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका की
ये आधिपत्य हुई गए हैं। हाँ समझे, ये सब भावों की बात होती है यार। इसलिए कहते हैं राधा जी की कृपा कटक से वृंदावन में वास तो अच्छी बात है, किंतु ये राधा जी की कृपा कटक से प्राप्ति हो जाए बस, तो वृंदावन में वास की सफल हो जाए। वृंदावन के रहने तो यही फल होता है। नहीं तो लक्ष्मी देवी के भांति वृंदावन में रह रही। I'm thinking she could not get, and we are Badaji, we are aspiring for Manjari Bhav. How possible? अरे चैतन्य महाप्रभु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, चैतन्य महाप्रभु स्पेशली इन दिस कलियुग, इन दिस कलियुग लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रीब्यूट द हाइस्ट प्रेम अनर्पित चरिंग चिराग करुणा अवतीर्ण करो। रूप गोस्वामी पाद मैनिफेस्टेड दिस वर्स है, अनर्पित चरिंग चिराग करुणा अवतीर्ण करो, करुणा अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संस भक्ति श्रियम। चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करके और जीवों के आस्वादन करा रहे हैं, अपनी आस्वादी सवेरे आस्वादन कराएगा। यही तो कलियुग के तो यही विशेष वैशिष्ट्य है, और महाप्रभु की अनुगत होने के नाते यही हमारे फल पाते हैं। 100% गारंटी है हम उस भाव को प्राप्त करेंगे, ये महाप्रभु की कृपा। इसलिए कहते हैं गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा की ये विशेष वैशिष्ट्य दिखाए। अरे भैया स्टेज एक दिन में हो जाता है। आप जो कर रहे हैं, जो कर नहीं पाते उसके लिए वो कहते हैं अच्छा चलो बहुत दिन लगेगा, बहुत समय लगेगा। किंतु जब आपकी उत्कंठा रहता है, भाई देखो उसमें कहते हैं ना, राग भक्ति के कहा जाता है गैलपिंग, हॉर्स गैलपिंग के लिए चलता रहता है, वो छलांग लगा ही चलते हैं, वो महाप्रभु की कृपा से हो जाएगा। आप रूप गोस्वामी कई श्लोक है, वो क्या श्लोक है, अभीरपल्ली पतिपुत्र कांता दस्साभिलसिता बलासवर है, इस श्लोक में ना, अभीरपल्ली पतिपुत्र कांता दस्साभिलाषा, जैसे श्लोक में भूल गया इसमें ना, अभीरपल्ली पतिपुत्र कांता दस्साभिलाषा बरासवर है। और इस मैंने कह रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में ये कहते जा रहे हैं, ये मेरा यही अभिलाषा है, जैसे घोड़े, जैसे मेरा मन रूपी अश्व, मन रूपी घोड़े क्या कर रहे हैं, छलांग लगा करके जा रहे हैं। ये कब हम ऐसे भावों की प्राप्ति करेंगे। विधि मार्ग के द्वारा प्राप्ति करने में बहुत समय लगता है, इस राग मार्ग में कहते हैं ना, कभी कभी तग्गी है ना, यदि अपराध नहीं करें, यदि आपके अपराध नहीं हो, वैष्णव निंदा नहीं किया, तो इस जन्म में प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जस्तेन वृंदावननाथ सक्सा सेवी लब्बा जमसंत बंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो लास्ट लोग में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने कह रहे हैं, तो उसके आप संदेह क्या है। गुरु के प्रति यदि निष्ठा रह जाए बस पार करा देंगे। इसलिए तो लास्ट लोग तो यही बोले, जस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवी लब्बा जनुसंत एवं। जनुसंत मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद आप अति अवश्य ये भाव को प्राप्त करें, इसमें कोई संदेह नहीं। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कार्य हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद के क्यों ग्रहण नहीं करेंगे, है विश्वास कर लो। आशीर्वाद कोई दे रहे हैं, उस आशीर्वाद की जब विश्वास करके ले लेते हैं तो असर फलीभूत होगा। नहीं हाजिर को तो गुरुदेव मेरा सिर पर हाथ दो, मैं कहता ना वो तबला बजा रहे हैं कहते ना करो भजन, उससे कुछ नहीं पता। विश्वास करके जब ले लेते हैं तब प्राप्त हो। एक ही श्लोक आप याद कर लेना, वो क्या बोले, गुरुवाष्ट के लास्ट श्लोक है, जनु से अंत एव। कितना बार है, कितना बार, अरे how many times will have to leave the body before नो we नहीं, get to the perfect दिस state? लाइफ बस, वो तो कह रहे हैं दिस है, गुरु के गुरुदेव के प्रकार निष्ठा हो जाए बस, इसी जन्म ही तो प्राप्ति, कितने बार की नहीं करे। अरे पहुंचा देता है भगवान, है जो विश्वास करके कर रहे हैं, दूसरे विषय नहीं, कितने बार महाप्रभु के लिए कितने कह रहे हैं। हरि नाम है नौका खानी श्री गुरु कंडारी है, ये नाम क्या है, हरिनाम। अरे हरिनाम कौन है, स्वयं गौर सुंदरी, तो नाम अवैध है। गौर सुंदर के चरण में आश्रय लेने पर कोई चिंता नहीं
है हमारे गौरांगेर घाटे अदान ख्या हुआ है अदान कोई ये नहीं लग रहे हैं, क्या बोले, टैक्स नहीं लग रहे हैं, फ्री, चलो कुछ करना नहीं है, तो बैठ जाओ नाव में, बस परिणाम है नौका खानी, श्री गुरु कंडारी, गुरुदेव पार लगा देंगे। नाव में जब बैठ गए, आप आंख बंद करके कुछ भी करो ना, है नृत्य करो, कीर्तन करो, कूदते रहो, जो कुछ करो, है आज में नाव में जब बैठ जाते हैं, हम जब नवदीप धाम जाते हैं ना, मायापुर जब जाते हैं नवदीप धाम, है तो नाव में बैठ गया, गौर सुंदर के चरण में बैठ गए और कूदते रहे, जो कुछ करते हैं, गौर सुंदर बोले हम पार करा रहे हैं, तुम चिंता क्यों करते हो। हरि नामे नौका खानी श्री गुरु कंडारी, संकीर्तन करवा दुबाहु प्रसाद, कितना सुंदर भाव को दे गौर सुंदर के चरण में आश्रय, बस हो सके कृष्ण के चरण में आश्रय करने में संशय भी हो, कुछ भी हो, किंतु गौर सुंदर के चरण में जो आश्रय ले लेते हैं, गौर सुंदर के जो हृदय में धारण कर लेते हैं, नित्यानंद के चरण को आश्रय कर लेते हैं, धरो निताई चरण दुखानी, बस दृढ़ करी धरो, बस टाइटली होल्ड द लॉर्ड नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर, है तो चिंता क्या, आप अनेकों जन्म क्यों बोले, एक ही जन्म में, दिस इज योर लास्ट बर्थ, विश्वास करके करना पड़ता है, जो भजन करो, नाम करते रहो। अच्छा चलो अभी आरती खत्म हो गई। बोलते थे कि अगर 8-10 जन्म भी लग गए तब भी सोचना बहुत जल्दी तो अरे हो वो गया। कुछ नहीं है, लगेगा नहीं यार जन्म, ये तो तुमके कहने के लिए तुम्हारी कार्य हमें लगेगा नहीं, तब भी क्या यदि 8-10 उनके सामने तो आंखों की पलक पड़ती भी हो रहा है। But it is that children, when they see the road is so long, then they get tired, no? Not so long, भैया। when you are able to see the road then you are tired, when many Vaishnavas are in front of you then you don't see even the road. चलो follow. आज परिक्रमा हम जब 20-25-30 भक्तों के साथ परिक्रमा किया, हमें पता ही नहीं लगा कितने समय में आ गए, ना कुछ कार्य सही बात है। तो So you stay with us. अकेला जाओ, देखो अब जैसे पैर नहीं चल रहे, कहाँ जा रहे हाँ, तभी रोड दिखाई देती है। रोड दिखाई दे रहा है और इधर सही उधर बात दिखाई दे रहा है। This is a secret of है। secrets. भक्त के साथ जब जाते हो ना, रोड देखना नहीं, चलते रहो, गुरु पूर्णिमा में गोवर्धन जाओ, अपनी आप धक्का दे करके पार करा देगा। अभी चलना नहीं पड़ेगा। जरूरत नहीं। गुरु पूर्णिमा में आजकल तो जब से हम गुरु पूर्णिमा के इतने भीड़ होती थी, आपको चलना नहीं पड़ेगा, आप देखो खड़े हो जाओ, हम धक्का अपनी दिखाएंगे। आप धक्का दे करके ले जाते हैं। Uplifted. एक बार हम लोग गए थे, उस समय तो ये क्या बोले, मथुरा में ये नहीं होता था, ये गुरु पूर्णिमा के व्यास पूजा नहीं होता था। उसके बाद कई साल के बाद हुआ, तो मथुरा के लोग बार बार दूसरा गुरुदेव नहीं करते ना, हमारे के गोड़े मठ में ये प्रचलन नहीं है। अच्छा। तो उसने एक बार क्या कि गुरुदेव के साथ गए थे, यही गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरुदेव चलो गुरुदेव हैं गोवर्धन परिक्रमा, और भाई क्या हम लोग जब परिक्रमा कर रहे थे ना, आधी रास्ते में इतने वर्षा होने लगे, सब दिख गया और रास्ता क्या खिचोड़ हो गया, पानी इतना हो गया, और लोग उसमें भी चल रहे चलते जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं, कोई गिर रहे फिर उसके उठा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इतना सारा वो दिन के बारे याद है, वो समझ बहुत आनंद होता है। गुरुदेव के साथ जो मैं गोवर्धन परिक्रमा था, मेरे याद है, गुरु पूर्णिमा के दिन है, वो भी रात के समय था और चलने लगे, कीचड़ हो गया। पर उस समय तो ये नहीं था, केवल खड्डा, वो रास्ता ये था, मिट्टी का रास्ता। मिट्टी के, oh, so it must be slippery. हाँ, with the इसलिए water. बारे होते हुए तो समय समय की बात है, आनंद होता है। गुरुदेव के समय जो आनंद जो है, रहने की जो आनंद है वो था। इसलिए हम एक कथा में भारती महाराज जी कथा कर रहे थे, बोलते हैं देखो मेरा अपने गुरुदेव के साथ भक्ति क्या ना, 50 साल मैंने रहे गुरुदेव के साथ सेवा में, इतने बस 50 साल 5 सेकंड लगता था, क्योंकि गुरुदेव अंतर ध्यान के बाद लगता है जो दिन करता ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव के साथ रहने के उत्साह और सेवा में ऐसे लगता है, और एक गुरुदेव की प्रेरणा आनंद जो होता था सब भूल जाता, सेवा सुख पे मन आनंद का समय ऐसे भी थोड़ा लगता है, हाँ, छोटा उसमें लगता समय है। दुख वाला अपने आप बड़ा हो जाता है। Yes. बोल देता है। चलो अब लोग आपको तुम्हारी छोटी बहन मत छोड़ो कभी। क्या मेरे को छोटी बहन मत समझो।
बड़ी समझो, आप बड़ी हो। नहीं, मैं और छोटी बहन है, तो आपको मैं मेरे निवेदन करते हूँ कि आपको मेरे कभी छोड़ो मत। अच्छा आप लोग प्रसाद पाओ हैं?